हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 विच इज़ इंटीग्रल एज ए फंक्शन ऑफ पैरामीटर। आज के इस लेक्चर में हम आगे की एग्जांपल सॉल्व करेंगे इसकी। सो एग्जांपल नंबर 6 क्या है? यूजिंग 0 to infinity dx upon x square plus a square which is equal to pi by 2a. If a is positive, using this fact, deduce that integral from 0 to infinity dx upon x square plus a square raised to the power n is pi upon 2 times a raised to 2n minus 1, 1 into 3 into 5 up to 2n minus 3 upon 2 into 4 into 6 up to 2n minus 2. And hence deduce that integral from 0 to pi by 2 cos की power 2n theta d theta that is equal to 1 3 5 up to 2n minus 1 upon 2 4 6 up to 2n times pi by 2, right? So we are to using the fact that integral इस integral की value ये है, we are to show that this is equal to this and hence from this we are to deduce this thing, right? So this question is somewhat different from the questions we have done previously. ठीक है, उसमें तो क्या था, उन क्वेश्चंस में आपने डायरेक्टली वो थ्योरम लगानी थी और इस इंटीग्रल को सॉल्व करना था, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ जी, वट वी आर गिवन 0 to infinity dx upon x square plus a square that is equal to pi upon 2a, right? So if we differentiate with respect to a, what we get? अगर हम इस इंटेग्रल और इसको विद रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट करते हैं तो हम क्या हमारे पास क्या आता है? नाउ दिस इज अ फंक्शन ऑफ ए, इसको इंटीग्रेट कर इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू ए, सो वी विल यूज दैट थ्योरम। अगर हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू ए, व्हाट डू यू डू? It is given from by 0 to infinity curl by curl a of 1 over x square plus a square times dx that is equal to pi by 2 1 over a का differentiation minus 1 over a square, right? So it means 0 to infinity. What is this equal to? It is equal to minus 2a upon x square plus a square का whole square, right? Times dx that is equal to pi by 2 times minus 1 over a square, ठीक है? माइनस माइनस दोनों साइडों से कैंसल, ठीक है? और ये वाला जो 2 है ये नीचे आ जाएगा। सो व्हाट विल बी दिस इक्वल टू 0 to infinity 1 over x square plus a square का whole square dx that will be equal to pi by 2, ये 1 over 2 इधर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 over a cube, right? 2a हम इस साइड ले आए, right? So after differentiating this with respect to a one time we are getting this. Now if we differentiate again with respect to a we get, ठीक है? अभी इसी को ही अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू ए, व्हाट डू यू गेट? 0 to infinity कर्ल बाय कर्ल ए ऑफ 1 over x square plus a square का होल स्क्वायर टाइम्स dx दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 टाइम्स 1 by 2 minus 3 upon a की पावर 4, राइट? और इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए पार्शियली, व्हाट डू यू गेट? यू विल गेट दिस इज इक्वल टू 1 over x square plus a square की पावर 3 टाइम्स dx। यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट हम जब इधर की साइड शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा पाई बाई 2 1 by 2 3 by 4 1 over a की पावर 5, right? Now you differentiate again with respect to a, differentiate with respect to a we get, अगर हम फिर से with respect to a differentiate करेंगे, what do you get?
0 to infinity dx upon x square plus a square की power 4 that is equal to pi by 2 times 1 by 2 times 3 by 4 times 5 by 6 times 1 over a की power 7. ठीक है. Now you will have to observe the pattern. जब हमने फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किया था तो यहाँ पे इसकी पावर क्या थी 2, राइट. जब हमने सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट किया पावर आई 3. जब हमने थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट किया पावर आई 4. ठीक है. सो इफ वी रिपीट द अबव प्रोसेस n times, what will be the left hand side? 0 to infinity dx upon x square plus a square की पावर n plus 1. क्योंकि जब हमने फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो आया 1 plus 1. सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो आया 1 plus 2. थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो आया 1 plus 3. nth टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा n plus 1. इज इट क्लियर? व्हाट विल बी राइट हैंड साइड? जब हमने फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पे भी पाई बाय 2 था. सेकेंड टाइम करने के बाद पाई बाय 2 था. थर्ड टाइम पे भी पाई बाय 2 है तो पाई बाय 2 तो आएगा ही आएगा, राइट. हाँ जी. ऊपर क्या है? यहाँ पे था 1, यहाँ है 1 इंटू 3, यहाँ है 1 इंटू 3 इंटू 5, राइट. थर्ड टाइम करने पे तो n टाइम करने पे क्या आएगा? 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1. ये आएगा ना, क्योंकि जब हम n को 3 पुट करेंगे तो आएगा 5. जब हम n को 2 पुट करेंगे तो आएगा 3. ठीक है. जब हम n को 1 पुट करेंगे तो आएगा 1. इज इट क्लियर? सो 2n माइनस 1 हो जाएगा. नीचे क्या आएगा? फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करने पे यहाँ पे सिर्फ 2 आया था. सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करने पे 2 इंटू 4 आया. थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट करने पे 2 4 6 आया. n टाइम डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आएगा? 2 4 6 अप टू 2n, राइट. 1 ओवर. फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करने पर a की पावर 3 आई. सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करने पर a की पावर 5 आई. थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट करने पर a की पावर 7 आई. ठीक है. तो इस हिसाब से n टाइम डिफ्रेंशिएट करने पे तो क्या आ जाएगा? पावर 2n प्लस 1. क्योंकि जब हम n को 1 पुट करेंगे आई विल गेट 3, n को 2 पुट करेंगे आई विल गेट 5, n को 3 पुट करेंगे आई विल गेट 7, राइट. तो इस तरह से हमने पैटर्न ऑब्जर्व करके n टाइम्स के लिए वैल्यू लिखनी है, राइट. बट हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए? यहाँ पे पावर n के लिए चाहिए. तो यहाँ पे पावर n कैसी आएगी? आई विल रिप्लेस n बाई n माइनस 1. ठीक है. अगर यहाँ पे मैं n को n माइनस 1 से रिप्लेस करूँ, व्हाट डू आई गेट? 0 टू इन्फिनिटी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n प्लस n माइनस 1 प्लस 1 दैट इज n. दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 1 3 5. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2n माइनस 3. यहाँ क्या आ जाएगा? 2 4 6 और यहाँ क्या आ जाएगा? 2n माइनस 2, राइट. 1 अपॉन ए को n को n माइनस 1 से रिप्लेस किया तो क्या आएगा? 2n माइनस 1. इज इट क्लियर? ठीक है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड thing that we wanted to prove, right? First, and hence now we are to deduce something. Deduction के लिए you put x equal to a tan theta in this result, so that your dx will be a times secant square theta d theta, right? ये बन जाएगा आपका. हाँ जी. Now what will be the limits? If x is equal to 0, theta will be 0. If x is equal to infinity, theta will be pi by 2, right? तो this integral will be converted to 0 to pi by 2. लिमिट्स हो जाएंगी 0 से लेके pi by 2 तक. ये बन जाएंगी dx क्या बन जाएगा? a secant square theta d theta अपॉन x square. स्क्वायर क्या बन जाएगा? a square tan square theta प्लस a square की पावर n, राइट. ये बन जाएगा d theta. नाउ व्हाट इज दिस इक्वल टू? pi by 2 1 3 5 अप टू 2n माइनस 3, 2 4 6 अप टू 2n माइनस 2, 1 ओवर a की पावर 2n माइनस 1. ठीक है. तो ये बन जाएगा हमारा, हाँ जी, a स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज, हाँ जी, ये बन जाएगा 0 से लेके pi by 2 तक a secant square theta d theta
यहाँ से ए स्क्वायर की पावर एन कॉमन आ जाएगी, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मीन सीकेंड स्क्वायर थीटा की पावर n, राइट, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 टाइम्स 1 3 5 अप टू 2n माइनस 3 2 4 6 अप टू 2n माइनस 2 टाइम्स 1 ओवर a की पावर 2n माइनस 1, राइट। हाँ जी, नाउ यहाँ पे क्या है पावर 2n, ऊपर क्या है 1, तो टोटल पावर यहाँ पे कितनी है 2n माइनस 1 पावर, तो ये 2n माइनस 1 पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, राइट। तो अंदर क्या बचेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा की कितनी पावर बच जाएगी, ऊपर है 1 नीचे है n, राइट। तो ये बन जाएगी अगर मैं नीचे की तरफ इसको लिखूं 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा की पावर कितनी आ जाएगी n माइनस 1, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स सीकेंड स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, सो ये बन जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा की कितनी पावर n माइनस 1, ठीक है। सो कॉस स्क्वायर थीटा की n माइनस 1 पावर मतलब 2n माइनस 2 थीटा d theta that is equal to pi by 2 1 3 5 up to 2n minus 3 2 4 6 up to 2n minus 2, राइट। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें डिड्यूस करनी है उसके लिए हमें n को रिप्लेस करने पड़ेगा n प्लस 1 से। आफ्टर रिप्लेसिंग n विद n प्लस 1 व्हाट यू गेट, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 cos की पावर 2 इंटू एन प्लस 1 माइनस 2 थीटा डी थीटा दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1 अपॉन 2 4 6 अप टू 2n, राइट। ये बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 0 टू पाई बाई 2 2n माइनस प्लस 2 माइनस 2 दैट इज कॉस रेज टू 2n थीटा डी थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 टाइम्स 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1 2 4 6 up to 2n, right. So this is the required deduction, okay. हाँ जी, next question, it is example number 7 in your book. Prove that integral from 0 to pi by 2 dx upon a square sin square x plus b square cos square x का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पाई टाइम्स a square प्लस b square अपॉन 4 टाइम्स a क्यूब b क्यूब, सॉल्यूशन, ठीक है जी। हाँ जी, इसका भी प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड दिस इंटेग्रल, वैल्यू ऑफ दिस इंटेग्रल a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, राइट। सो दिस इज सपोज i, ठीक है, विदाउट स्क्वायर मैंने इसको लिया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंटेग्रेट दिस, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, इस तरह के इंटेग्रल को हम कैसे करते हैं, वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स से जब इसको डिवाइड करेंगे ये क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नाउ यू पुट 10x इक्वल टू टी, दैट मीन्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी, ठीक है। नाउ व्हाट आर द लिमिट्स, व्हेन x इज 0 t विल बी 0, when x is pi by 2 t will be infinity, ठीक है। so this integral will be from 0 to infinity dt upon a square t square plus b square, ठीक है। so what will be this integral, equal to 0 to infinity dt, a square अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा t square plus b square upon a square, ठीक है। so what will be this integral, equal to a square times 1 over a क्या है b upon a, tan inverse t upon a यहाँ पे क्या है b upon a, right. so limits are from 0 to infinity, ठीक है। so ये बन जाएगा हमारा a क्यूब, सॉरी ए और ए कैंसिल 1 ओवर बी अपॉन ए, ये है ना, ये सॉरी 1 ओवर ए स्क्वायर कॉमन निकाला है ना यहाँ पे, हाँ जी, ए के कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा 1 ओवर ए टाइम्स बी, tan इनवर्स ये बन जाएगा ए टी अपॉन बी, ठीक है। लिमिट्स आर फ्रॉम
0 to infinity. ठीक है, जब हम t को इन्फिनिटी पुट करेंगे ये क्या बन जाएगा 1/ab tan inverse infinity will be pi by 2, tan inverse 0 will be 0, so this will be pi upon 2ab, right? So the value of the integral I, which is integration from 0 to pi by 2, is dx upon a square sin square x plus b square cos square x, that is equal to pi upon 2 times ab. ठीक है, now if you differentiate it with respect to a, what will be di by dA. ठीक है, तो अगेन बाय दैट थ्योरम अंदर हम क्या ले लेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू a, 1/a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x dx. ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू d बाई डी ए ऑफ पाई अपॉन कर्ल बाई कर्ल a ऑफ पाई अपॉन 2ab. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा डी आई बाई डी ए, दैट इज इक्वल टू 0 to pi by 2. जब हमने इसका डिफ्रेंसिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू a, तो हमारे पास आया 2 times a साइन स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 2 times a स्क्वायर b. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू. नाउ वी डिफ्रेंशिएट द सेम इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू b. जब हम b के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा बन जाएगा डी आई बाई डी बी, दैट इज इक्वल टू 0 to pi by 2. जब हम b के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो बन जाएगा 2 times b cos स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 2ab स्क्वायर. ठीक है, now suppose this is equation number 2 and this is equation number 3. If you add 2 and 3, what it will give you? जब हम इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे तो अंदर बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सम इज सम ऑफ इंटीग्रेशन, सो इट विल बी 2a टाइम्स 2a सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2b इधर ले जाती हूँ मैं, 2b इधर ले जाके ये 2a इधर ले जाती हूँ तो ये बन जाएगा 2a 4a क्यूब. ठीक है, और ये 2b को मैं इधर ले जाती हूँ तो ये बन जाएगा 4b क्यूब. ठीक है, नाउ यू ऐड साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx, दैट इज इक्वल टू माइनस ये माइनस साइन जो है दैट विल ऑल्सो 0 to pi by. यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ रहा था तो ये नेगेटिव साइन जब मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, राइट? ओके, सो इट विल बी पाई बाय 4 कॉमन, ए बी कॉमन, अंदर बच जाएगा 1 a स्क्वायर 1/, इट विल बी अंदर बच जाएगा a क्यूब b क्यूब कॉमन तो अंदर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b square, right? So this will be equal to integral from 0 to pi by 2 sin square x plus cos square x will be 1/a square sin square x plus b square cos square x का whole square, it will be equal to pi by 4 times a cube b cube a square plus b square. ठीक है, so it means integral from 0 to pi by 2 dx upon a square sin square x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4 टाइम्स a क्यूब b क्यूब इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड थिंग विच वी वांटेड टू प्रूव. ठीक है, तो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया. दिस इज समवट डिफरेंट बट यू शुड नो व्हाट आर द स्टेप्स. हमने सबसे पहले इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट करना था, हमने विदाउट स्क्वायर ये लिया, उसकी वैल्यू को सॉल्व किया, मतलब हमारे पास ये वैल्यू आई की आ गई. ये इंटीग्रल तो हमारे पास सॉल्व हो गया विदाउट स्क्वायर अगर हम इसको लें. ठीक है, फिर हमने इस फंक्शन को कंसिडर किया एज ए फंक्शन ऑफ ए एंड बी. अब हमें पता है उस थ्योरम के जरिए कि अगर हमने इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है विद रिस्पेक्ट टू ए तो हम कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू ए पार्शियली. ठीक है, ये अंदर चला जाएगा और इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ए. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए करने के बाद वी गॉट दिस थिंग, राइट?
सो फिर हमारे पास ये इक्वेशन 2 आई। विद रिस्पेक्ट टू बी करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आई। ठीक है, सो आफ्टर एडिंग द टू यू हैव द इंटेग्रल ऑफ द रिक्वायर्ड थिंग। ठीक है, जिस चीज़ का हमें इंटेग्रल निकालना है वो हमारे पास आ जाती है, विच इज इक्वल टू दिस, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट विच वी वांटेड टू प्रूव। ओके, थैंक यू।